Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's lecture, we will see the new topic that is the longest common subsequence. Okay, we will deal this topic by using the dynamic programming. Okay, dynamic programming. Okay, so whenever we are solving any kind of problem by using the dynamic programming, so we have to always remember one thing, that whenever we are approaching the dynamic programming, the particular concept have the particular problem have the two concepts. First one is the overlapping, and then the over sub problem. Okay, if the overlapping and over sub problem is been created in the longest common subsequence, then only we can use the dynamic programming here. Okay, so this is all about the longest common subsequence. Okay, now we will see what exactly the longest common subsequence is called as. Okay, so very first we will try to understand only the subsequence, what exactly the subsequence is stand for. Okay, so I just give here heading subsequence. Okay, subsequence, sequence. Okay, what exactly a subsequence is, and let us understand by using the example. Okay, whatever the part I am teaching currently right now, it is all about the theory. If the questions comes like explain the longest common subsequence, only this kind of question comes, then you should have to write this kind of theory. Okay, the theory is almost about two or almost 2.5 pages. Okay, a huge theory of this concept. Okay, so if suppose I have string. Okay, so that's A, B, C, and D. Okay, then what exactly the subsequence is and what exactly the substring is. Okay, so very first we will understand what exactly the substring. Okay, so I just give the heading of substring, and then if suppose I have this string A, B, C, and D. So in the substring, I can write A, B, or B, C, or C, D, or A, B, C, or B, C, D. This kind of structure comes under the subsequence, but I can't write here C, A. I can't write. It will not allow. Okay, it will not allow this kind of sequence will not consider in the substring. Okay, if okay, so this is all about the subsequence, and if I wants to write the this is all about the substring, and if I wants to write the subsequence. Okay, subsequence, so I can write, and now I have to identify what kind of sequence did the above string mention. We can identify it. Okay, so I can write A, C. I can also write B, D. I can, and इट मीन्स यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा था सी ए, यानी यानी जैसे कि देखो मैं यानी यहाँ से ए लिया, फिर मैंने सी लिया, या फिर मैंने ए लिया, मैंने डी लिया, यानी बीच में भी जितने भी नंबर से मैं उनको मिस कर सकता हूँ, और जो भी मिसिंग वाले नंबर रहते हैं मैं उनको सब सीक्वेंस में अपन यानी काउंट कर सकते हैं, बट सब स्ट्रिंग में अपन उनको काउंट नहीं कर सकते। सब स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, एकदम पास पास के, जैसे ए और बी देखो एकदम यानी एकदम साथ साथ में आए, तो उन्हीं को अपन क्या कर सकते हैं, उन्हीं को अपन सब स्ट्रिंग कह सकते हैं। यानी ए बी सी भी हो सकता है, फिर ए बी सी डी, ये पूरी स्ट्रिंग भी सब सीक्वेंस में सब स्ट्रिंग में आ सकते हैं। लेकिन ए बी अब ये जो ए बी है ना, ये भी अपना सब सीक्वेंस है, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि भाई सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, सो ए सी भी अपन लिख सकते, बी डी भी लिख सकते, या फिर सी एंड देन आई कैन ऑल्सो राइट डी। ओके, बट आई विल नॉट राइट लाइक दिस सी एंड ए। ओके, यहाँ पे जो मैंने सी और ए लिखा, सॉरी हाँ, ये सी और ए लिखा, ये भी सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग नहीं है। क्यों नहीं है कि देखो सिक्वेंशियली सबसे पहले ए आता है, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले सी लिखा है, और सी के चलो अब मैंने लिख तो दिया सी, लेकिन उसके बाद अगर मैंने ए लिखा तो वो कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि सिक्वेंशियली ए पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, तो ये ऐसे केस एक्सेप्ट ही नहीं करता। भले ही वो सब स्ट्रिंग में भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो ना ही सब सीक्वेंस में भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सब स्ट्रिंग and subsequence in the part of the subsequence. And now we will learn about what exactly a common subsequence is. Okay, so this is all about the subsequence. Moving toward the next concept, that is common subsequence. Okay, now we will completely understand what exactly the subsequences is. So the common subsequences are, if suppose I have the two string. Okay, I just write here example. Okay, if I have x and y. Okay, I just give here x and y. If here I have a, b, c,
D, H, F. Okay, and in the Y I have A, E, D, F and K. Okay, so now I have to find what is the common sub, sorry I don't अच्छा अभी दिख रहा है ना, okay ठीक है. So I have this kind of example. Okay, and now I have to find what exactly the common sub sequence is here present. Okay, देखो अब इसमें common sub sequence क्या हो सकता है. देखो इसको common sub sequence find out करने का, देखो फर्स्ट स्ट्रिंग x है, सेकंड स्ट्रिंग y है, तो मेरा x में वन a है, हाँ जी है, मतलब मेरा a पहला कंसिडर हो चुका है. फिर नेक्स्ट b है क्या, इसमें कहीं पे भी नहीं है, मतलब b को मैं एलिमिनेट कर दूंगा. फिर c है क्या, कहीं पे भी नहीं है. फिर क्या है d, मतलब मेरे को यहाँ पे मिला d. बट इफ अगर यहाँ पे मैंने e लिखा, चलो मैं लिख ही देता हूँ e, ठीक है, आपको मैं ये कॉन्सेप्ट आगे में समझाऊंगा जब अपन ई पे जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यानी यहाँ पे ए हो गया, मेरा डी भी आ चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद में और क्या है, एच है क्या, यहाँ पे कहीं पे नहीं है. फिर एफ भी है, तो देखो मेरे को यहाँ पे एफ भी मिल गया, तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्या आया, एफ भी आ चुका है. अब नेक्स्ट देखते ई, देखो ई भी मेरे पास प्रेजेंट है, बट मैंने ई के पहले मैंने दो, जो ई के बाद में जो दो अल्फाबेट आ रहे हैं, मैंने उन दोनों को कंसिडर करा है. तो अब मैं इस ई और इस ई को कंसिडर नहीं कर सकता. अगर सपोज ये वाला ई इधर होता, तब जाके मैं इस ई की इसके साथ मैच बना के यहाँ पे उसको लिख देता, लेकिन इसके बाद कुछ है अल्फाबेट स्ट्रिंग्स के जो कंसिडर हो चुके, जैसे वह मैं इस ई को अब कंसिडर नहीं कर सकता, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे. अब देखो मेरे पास ये जो सीक्वेंस आई है, इसमें इसकी कितना है, इसका साइज है अपना 0 3, यानी थ्री सीक्वेंस का साइज है. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे को क्या फाइंड करना है, कॉमन सब सीक्वेंस. सब सीक्वेंस तो अपना ऐसा भी होता है कि मैंने ए और एफ लिख दिया तो भी चलेगा, या फिर मैंने ए और डी लिख दिया तो भी चलेगा, या फिर मैंने ए डी लिखा और बाद में एफ लिखा तो भी चलेगा. बट मेरी कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, कॉमन देखो ये भी मेरे सब सीक्वेंस है, ये भी मेरे सब सीक्वेंस है, ये भी है. ये सब सीक्वेंस नंबर 01, ये सब सीक्वेंस नंबर 02, ये सब सीक्वेंस नंबर 03. बट जो मेरी ये है ए डी एफ, ये मेरी क्या है, कॉमन सब सीक्वेंस. कॉमन इन द व्हाट काइंड ऑफ कॉमन, इन अबाउ, यानी जो दो ऊपर में स्ट्रिंग्स दिए, इन दो स्ट्रिंग्स के बेसिक्स पे, इन दो स्ट्रिंग के बेसिस पे जो मेरी कॉमन सब सीक्वेंस निकल रही है, वो है मेरी ए बी और एफ. Okay, so this is all about the common subsequence. Now we will move toward the longest common subsequence. Okay, so I just divide the whole concept. Okay, so very first we will understand only about the subsequence and substring, then we will understand common subsequence, and now we will understand longest common subsequence. Okay, so I just give here heading what exactly the longest common subsequence is. Okay, so longest common subsequence. Okay, always try to understand it by LCS. Okay, almost in every exam, every kind of paper, you are generally see LCS. So don't be get very much confused, very much confused. If the LCS will be present in any kind of question, it means it directly indicated the longest common subsequence only. Okay, so I have the another example for here also. Okay, if let us कौन सा एग्जांपल ले, प्रीवियस वाला ही ले क्या, ये वाला, नहीं नहीं नहीं, कोई नया एग्जांपल ले लेते. ठीक है, इफ सपोज आई हैव x string and y string. Okay, in x I have a g g a g g and then t a b. Okay, and in y I have g x t x a and y, a y and b. Okay, this kind of strings I have, and now I have to find the longest common subsequence. What exactly I have to find, I have to find the longest common subsequence, that is also called as LCS. Okay, LCS. So very first, is the a is here, oh I just get here a, so a is possible here, जस्ट गेट ओमिट. ये देखो अगर मैंने इस ए को कंसिडर करा, तो मैं जो इतने सारे हैं, मैं इतने सारों को कंसिडर नहीं कर सकता. तो मेरी लॉन्गेस्ट, देखो अब अपन को लॉन्गेस्ट कॉमन निकालनी है, फिर भी अपन कंसिडर कर देते. तो ये मैं सिर्फ ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट नहीं देता, अपन डायरेक्टली लिखते. अगर मैंने ए को कंसिडर करा, ठीक है, यानी ये वाला ए और ये वाला ए कंसिडर होगा. अब जी आता है क्या, आगे में नहीं है, इसमें भी जी नहीं है, टी भी नहीं है, ए भी नहीं है, सिर्फ बी है. यानी मेरी एक पॉसिबिलिटी ये निकली. कौन से, जब मैंने ए को इसके साथ जोड़ा तब मेरी पॉसिबिलिटी ये निकली. अब नेक्स्ट,
ए को अब मैं इसको कंसिडर नहीं करता, अब मैं जी को कंसिडर करता हूँ, यानी मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाला एक जी जुड़ा, एक्स तो नहीं जुड़ रहा है, टी देखो यहाँ पे भी एक टी मेरे को मिला, ये एक टी हुआ, ये एक ए हुआ और ये एक बी हुआ, कुछ इस तरीके से। यानी दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे क्या मिली, जी टी ए एंड बी, एक ये पॉसिबिलिटी मिली, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी मेरे को मिल सकती है यहाँ पे कि मैं ये वाला जी छोड़ के ये वाला जी कंसिडर कर सकता हूँ, नहीं इस जी को इसके साथ जोड़ा, फिर ये टी, फिर ये ए, यानी एज इट इज मेरे को यही मिलने वाला है स्टिल, ठीक है। देखो तो इस तरीके से ना, और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है, सेम यही पॉसिबिलिटी बनेगी ये वाला जी कंसिडर करा तो भी, ठीक है। या फिर हाँ चलेगा, बस ऐसे, यानी तीन पॉसिबिलिटी आते हैं। और देखो इसका साइज कितना आ रहा है, 0 2 का, इसका कितना आ रहा है, 0 4 का, और जो नेक्स्ट मेरी थर्ड वाली बन रही थी यहाँ पे, यानी सेम एज इट इज, उसका भी 0 4 का ही आ रहा था। तो एज अ नेम गिवन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, मतलब कि जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्रिंग की कैपेसिटी होंगी वो मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कहलाएंगी। मतलब यहाँ पे जो मेरा जी टी ए बी है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है जी टी ए और बी, तो ये मेरा क्या कंसिडर हो जाएगा, ये मेरा कंसिडर होगा एज एन जी एज एन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा आपको मतलब समझा दिया है कि भाई लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस एग्जैक्टली होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते विथ उसके प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक इसी तरीके से आपको पूरी थ्योरी पेपर में भी लिख के आनी है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसका रिकर्सन इक्वेशन। ओके, रिकर्सिव इक्वेशन या फिर रिकर्जन इक्वेशन, जो कुछ बोलते हैं, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वो अपन पढ़ने वाले, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन दे देता हूँ। ओके, अब देखो इसका अपन क्या पढ़ेंगे, रिकर्सिव इक्वेशन। अब रिकर्सिव इक्वेशन इसके तीन तरीके से होते हैं, ठीक है। अब तीन तरीके के रिकर्सिव इक्वेशन में अपन सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं एज एल सी एस, एल सी एस, अरे यार, एल सी एस ऑफ एम कॉमा एन। अब एग्जैक्टली एम क्या होता है, एन क्या होता है, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट इफ आई गेट आंसर 0, अगर मेरे को आंसर मेरा 0 चाहिए तो मेरे पास कंडीशन है। अगर मेरी कंडीशन में इफ माई एम इज इक्वल्स टू 0, और यानी अगर मेरा एम 0 रहा, या फिर अगर मेरी n की भी वैल्यू 0 रही, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 0, यानी यहाँ पे जो आ रहा है वो आंसर था, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी कंडीशन नंबर 1 हो गई। मैं यहाँ पे लिखता कंडीशन नंबर 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कंडीशन नंबर 0 2 भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 2 लिख देते हैं। अब देखो और एक दूसरा आता है कि भाई अगर सपोज मेरी कंडीशन कुछ ऐसे फॉलो हो गई, तो उसमें मेरे को यूज करना पड़ता है 1 प्लस एल सी एस ऑफ m माइनस वन कॉमा n माइनस वन। इस तरीके का मुझे आंसर मिलेगा, कब मिलेगा, जब इफ 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 x ऑफ m, यानी जो भी मेरी m की वैल्यू रहेंगी x ऑफ m के रिगार्डिंग, जो भी स्ट्रिंग की, वो इक्वल्स टू y ऑफ n रहेगा। यानी जब भी मेरी m और n की वैल्यू अगर सेम आई, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये मेरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन आती है, ठीक है। अब आती है अपनी तीसरी कंडीशन, ठीक है। ये भी आपको थ्योरी में एज इट इज मेंशन करना है, बट तीसरी कंडीशन में यूज होता है जनरली मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे मैक्सी लिख देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम के दो फॉर्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को वही निकालना है अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। किसका निकालना है, एक तो मुझे m को कांस्टेंट करना पड़ेगा और n में से एक माइनस करूंगा, या फिर मैं किसको करूंगा, मैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालूंगा जिसमें मैं n को कांस्टेंट रखूंगा और m में से एक माइनस करूंगा। तो इन दोनों में से जिसकी भी आंसर मेरी मैक्सिमम आएंगी वो मुझे कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन ये मैं यूज कब करूंगा, ये दो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला, ये जो थर्ड नंबर की कंडीशन, ये कब यूज करना है, इफ, कब यूज करनी है, इफ माई x ऑफ m इज नॉट इक्वल्स टू y ऑफ n, ठीक है। तो ये मुझे कब यूज करना है, जब मेरी m और n की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, तब मुझे ये यूज करना है। अगर 0 0 रही तो आंसर 0 आएगा, इक्वल इक्वल रही तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये पूरा अपना रिकर्सिव इक्वेशन हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये भी लिखना है। अब देखिए इतना लिख के छोड़ना नहीं है, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो अब मैं इसका एक एक फॉर्मूला आपको अच्छे से, जो अपन ने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल लिए, उन्हीं के बेसिस पे अपन ये वाले सारे फॉर्मूलेज अपन अभी ट्राई करके देखने वाले कि इनको अप्रोच ले अपन इसको कैसे देख सकते हैं, फिर कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब मैं पहले यहाँ पे आपको m और n का मतलब बता देता हूँ कि
एन क्या, एम क्या होता है और एन क्या होता है, वो कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो आपके ऊपर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। देखो अब एम यानी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, एलिमेंट्स इन एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया मेरे, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग 0 1, मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ। और एन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई मतलब क्या होंगी मेरी नेक्स्ट स्ट्रिंग, जो मेरी सेकंड स्ट्रिंग रहेंगी, यानी स्ट्रिंग 0 2, यानी जो यहाँ पे मैंने लिखा था एक्स क्या था वाई क्या था, तो ये एक्स क्या हो गया, कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 क्या हो गया मेरा, यानी 6 किसकी वैल्यू हो गई, एम की। तो यहाँ पे जो मेरे को लिखा है यहाँ पे M-1, मतलब 6 में से एक माइनस करो, एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 7 है, तो 7 में से एक माइनस करो इस फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे क्या करना है, 6 को एज इट इज रखो, 7 में से एक माइनस करो, 7 को एज इट इज रखो, 6 में से एक माइनस करो, इस तरीके से अपन को करना है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको यही स्ट्रिंग आएंगे, अपन कोशिश करते हैं शायद मैं एग्जांपल में आपको यही स्ट्रिंग समझा दूं, ठीक है। तो ये हो गया, अपने एम और एन का भी अपन ने पूरा मतलब देख लिया इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब अपन इसमें से एक एक कंडीशन को यूज करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि उसका आंसर किस तरीके से आता है। उसके बाद में अपन एक डिटेल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सपोज अगर मेरे पास स्ट्रिंग दी रही, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूं अपन, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास एग्जाम्पल में वही अपनी जो पिछली वाली थी स्ट्रिंग, जैसे कि ये मेरा x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया मेरा y हो गया, मेरे पास दिया A G G T A B, कुछ ये थी a में, और y में क्या था अपना, G X T X A और B, ठीक है, ये था, ठीक है। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया, अब अपन इसमें ना फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके, मेरा फॉर्मूला क्या था, जो मेरा पहला फॉर्मूला था, जो मेरी पहली कंडीशन थी, फिलहाल के लिए ये वाली कंडीशन भूल जाओ, इसको ना मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल में समझाऊंगा। इसके लिए नहीं तो देखते इसको, मैं एक बेस्ट केस रहता है थेरी का, वही मैं अपन, ये पूरा थेरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, स्टिल थेरी चल रही है, ठीक है। फर्स्ट वाले को आखिरी में समझाते हैं, पहले मैं सेकंड कंडीशन को हाथ लगाता हूँ, तो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिकर्सिव इक्वेशन, मेरी सेकंड कंडीशन क्या थी, मेरी सेकंड कंडीशन थी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ M, N इज इक्वल्स टू, क्या था मेरा, 1 था, 1 प्लस कितना, 1 में मेरे को प्लस करना था, 1 प्लस लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ M-1, N-1, ठीक है। ये वाला मुझे क्या करना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था। कब अप्लाई करना था, इफ इफ मेरा x ऑफ m इज इक्वल्स टू मेरा y ऑफ n से, अगर मेरी x ऑफ m और y ऑफ n की अगर मेरी वैल्यू इक्वल आ गई, तब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो अब देखो इसमें इक्वल कैसे आई थी, देखो x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, ऐसे वैल्यू नहीं गिनना था, सॉरी, ये क्या है, x ऑफ m लिखा, अगर यहाँ पे m लिखा होता तो मैं वैल्यू गिनता, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग ऑफ x। तो देखो इसका आखिरी का एलिमेंट क्या है, b, और इसका भी आखिरी का एलिमेंट क्या है, b। तो अगर अपन अच्छे से देखेंगे तो दोनों क्या हो गए अपने, दोनों भी मैच हो चुके हैं दोनों मैच, यानी बी भी आ गया, यानी देखो एम की भी इक्वल हो चुकी है, वाई की भी इक्वल हो चुकी है, क्योंकि अपना जो था एंडिंग का एलिमेंट जो तो क्या था, बी था। तो अब जब भी अगर ऐसा कॉमन कॉमन आता है ना, जब भी अपना एक्स ऑफ वाई और एक्स ऑफ जे आता है इतना, तो अपन को क्या फॉर्मूला लगाना है, जितनी भी मेरे को स्ट्रिंग का साइज दिया है उसमें से एम में से एक माइनस करना है, कितना था, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 माइनस करा, अपने पास 5 बचा, मतलब मैं किसको कंसिडर करूंगा, मैं कंसिडर करूंगा सिर्फ इतनी स्ट्रिंग को, बाद में इससे मैं सॉल्व करूंगा अपने आगे का प्रोसेस। और नेक्स्ट में क्या है, एन में से एक माइनस करो, एन में टोटल कितने थे, 7 एलिमेंट्स थे, तो 7 में से एक माइनस होगा, तो मुझे किसको कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे कंसिडर करना पड़ेगा इतने, यानी ये 6 एलिमेंट को। यानी जब भी अगर सपोज ये वाली स्ट्रिंग को अगर मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस से सॉल्व करना होता, तो पहले मैं ये फॉर्मूला लगाता, फिर मुझे पता चलता है कि ये दोनों तो कटने वाले, सिर्फ मेरे को इतने ही स्ट्रिंग को बिठाना है और उसी के हिसाब से मेरे को मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये सेकंड नंबर का फॉर्मूले का पूरा एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से दे सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के तरफ, उसमें अपन नया वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने और एक नया एग्जांपल ले लिया, जिसमें मैं लिख रहा हूँ इस नए एग्जांपल में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया, एक मेरी स्ट्रिंग है x की और दूसरी स्ट्रिंग है मेरी y की। अगर मैंने x में लिख दिया a, y में a है, b है, c d, ये मैंने लास्ट टाइम भी लिया था एग्जांपल, सबसे पहले a b c d, बाद में h और f, और नीचे में मैं लिख रहा हूँ a e d f एंड k,
ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे को स्ट्रिंग दी रही और उसमें अगर मैंने कंडीशन नंबर 3 लगा दी, तो अपनी कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है, अच्छा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है मेरी कंडीशन नंबर 02। ठीक है, कंडीशन नंबर 02 है। यहाँ पे अपन क्या करने वाले, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले कंडीशन नंबर 03। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले, कंडीशन नंबर 03। अब देखो, जब भी मेरे को 03 लगानी हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, अपनी 03 की कंडीशन क्या थी, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ m कॉमा n था, जिसमें अपन को क्या लगाना था, अपन को मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना था। जब भी अगर मैंने इसमें मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा तो उसमें अपने कितनी पॉसिबिलिटीज आती थी, उसमें अपनी दो पॉसिबिलिटीज आती थी। सबसे पहले मेरी पॉसिबिलिटी क्या होती थी कि मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में क्या रहेगा, मैं m को एज इट इज रखूंगा और n में से एक माइनस करूंगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की, मैं n की वैल्यू एज इट इज रखूंगा और m में से एक माइनस करूंगा। इस तरीके की मेरे कुछ पॉसिबिलिटी थी, और ये मेरे को कब यूज करना था, इफ कब यूज करना था, इफ माई x ऑफ m इज नॉट इक्वल्स टू y ऑफ n। ठीक है, तो देखो अब x ऑफ m मतलब आखिरी वाला एलिमेंट जब मेरा दूसरे वाले स्ट्रिंग से इक्वल नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे f है और यहाँ पे k है, तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। अगर मैंने ये वाली कंडीशन लगाई तो यहाँ पे किस तरीके की मेरे को स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला है मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, दोनों मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे मैच। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले m की वैल्यू मेरे को एज इट इज रखनी है और n में से एक माइनस करना है। तो ये जो दोनों केस है ना, मैं नीचे निकालता हूँ यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो यही स्ट्रिंग में एज इट इज नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरे पास x है, दूसरा मेरे पास y है। यहाँ पे क्या है, a b c d h और f, और नीचे में क्या है, a e d f एंड k। और मेरे पास, और वही मैं वापस से लिख रहा हूँ सेकंड वाले केस के लिए, वापस से मैंने x लिखा, y लिखा, यहाँ पे भी क्या है, a b c d h f, यहाँ पे है a e d f k। ठीक है, इस हिसाब से अब अगर मैंने अपना पहला वाला केस लगा दिया जिसमें क्या है, m की वैल्यू एज इट इज है, मतलब कि मेरा जो ये है x जो होता है इसको m बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। ठीक है, आपको इतना अब तक समझ जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग कंसिडर करूंगा और n में से एक माइनस करूंगा, यानी यहाँ पे मैं f तक की ही स्ट्रिंग कंसिडर करूंगा और मैं k को एलिमिनेट कर दूंगा। इस तरीके से कंसिडर होगा इस वाले केस के हिसाब से। अगर मैंने नीचे का केस लगा दिया, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ n की वैल्यू एज इट इज और m में से एक माइनस करा, मतलब कि मैं पहले n की पूरी स्ट्रिंग एज इट इज कंसिडर करूंगा और m में से एक को माइनस करूंगा, यानी इतना, यानी जो f था वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इन दोनों केस में अपने को लगाना पड़ता है। लेकिन इन दोनों में से ये जो दोनों अपने केस है, इसमें से जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ज्यादा नहीं मिलती, 0101 इसी फॉर्म में आता है आंसर हमेशा। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकलेंगी वही मुझे क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का क्या हो गया, जो मैंने यहाँ पे रिकर्सिव इक्वेशंस बताते मैंने दो कंडीशंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब ये जीरो वाली कंडीशन कैसे एक्सप्लेन करनी है मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, देखो, तो जीरो वाले कंडीशन के लिए मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ वापस से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो, इसमें ना मैं पूरी स्ट्रिंग एज इट इज लेता हूँ, ए बी सी, ए बी सी, ये क्या है, एक्स है और ये क्या है, वाई है। ठीक है, देखो मैंने एज इट इज पूरी स्ट्रिंग ली। अब देखो इसमें, देखो इसका ये भी एलिमेंट मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये देखो सारे के सारे एलिमेंट मैच कर, तो भाई क्या करे इसमें। तो अब देखो इसमें जो मेरी कंडीशन थी, जो मेरी पहली कंडीशन थी, क्या थी, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ m कॉमा n वेयर क्या था, आंसर में क्या था, 0 इफ m इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू 0, यानी एलिमिनेट, यानी इसको अपन को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो देखो इसको कैसे पहुंचाएंगे, जब भी मेरा दोनों मैच हुआ है तो मतलब मेरे को कौन सा केस लगाना है, ये वाला, जो मेरा ये वाला केस था सेकंड वाला, ये वाला लगाना है। तो अगर मैं इसके हिसाब से सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये दो कंसिडर करना पड़ेगा और ये दो कंसिडर करना पड़ेगा इस वाले केस के हिसाब से। वही केस लगेगा ना, देखो ना, दोनों दोनों सेम आ गए। यहाँ पे वापस ऑरेंज ऑरेंज बना देता हूँ। ठीक है, देखो दोनों सेम आ गए, मतलब कि यहां से मैं एक माइनस करूंगा m में से और n में से भी एक माइनस करूंगा, नहीं ये वाला सेकंड कंडीशन ही लगेंगी। पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वन, लेकिन वन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को सेकंड कंडीशन का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाई, मतलब मेरे पास कैसा आंसर आएगा इसका, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ, ठीक है, कितना है, 3,3। तो मैंने यहाँ पे लिखा m की वैल्यू भी 3 थी, ये भी n की वैल्यू भी 3 थी। ठीक है,
अब इसमें का पहले अपना क्या था 3,3 यानी इस वाले केस के हिसाब से क्या था 1, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया 1 प्लस लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब मेरे को क्या करना है m में से एक माइनस करना है, 3 - 1 कॉमा 3 - 1, n की भी वैल्यू 3 है, m की भी, यहाँ पे भी लिख दो आप नीचे में ताकि आपको समझ जाए m और n है, माइनस करना है इतना। ठीक है, क्यों माइनस किया, क्योंकि देखो मेरी इफ ये जो था मेरा देखो सेम आ गया सी सी, तो मैंने माइनस कर, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस LCS ऑफ 2,2 ऐसा मिलेगा। अब मैं 2,2 की वैल्यू चेक करूंगा मैट्रिक्स में कि भाई एग्जैक्टली 2,2 की वैल्यू कितनी आई है। अगर सपोज इसकी वैल्यू 0 होंगी तो बाद में 0 + 1 होगा, अगर इसकी वैल्यू 1 होंगी तो 1 + 1 2 आएगा, यानी इसका आंसर धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं पता, लेकिन ये इस तरीके की कंडीशन आएंगे। नेक्स्ट में क्या करूंगा, अब देखो इसमें क्या आया, मतलब मेरे पास क्या बचा, इसके अकॉर्डिंगली ये जो है, ये जो सॉल्यूशन है इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास स्ट्रिंग क्या बचेंगी, ए बी, ए और बी, कुछ इस तरीके की इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास स्ट्रिंग बचेंगी। अब देखो इसमें वापस बी और बी, देखो वापस से क्या आ गया, कॉमन आ गया ना, वापस से मैं ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, मतलब वापस से मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ 1,1 आएगा, क्योंकि वापस से यानी 2 था 2 में से यानी 3 के जगह 2 लिखना पड़ेगा, 2 - 1 यानी 1,1 होगा, यानी अब मेरे पास स्ट्रिंग क्या बची, इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास स्ट्रिंग क्या बची, ए बची और यहाँ पे भी ए बची, बट स्टिल देखो वापस से ये मैच हो गई यहाँ पे पूरी वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से 1 में से 1 माइनस करूंगा, यानी क्या आएगा 1 प्लस LCS ऑफ, यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स 0 आएगा, इसमें इधर में भी 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे आ गई मेरी, ये भी क्या थी मेरी m की वैल्यू और ये क्या थी मेरी n की वैल्यू। तो जब भी m और n की वैल्यू 0 आती है तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से अपन अपना कंडीशन नंबर 1 में यहाँ पे अपना क्रॉस चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या है, कंडीशन 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ। इसी कंडीशन 1 को अपन क्या कहते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। यहाँ पे मैं से स्टार भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ये थ्योरी में लिखना ही है, इतना जितना भी अब तक मैंने पूरा 4 पन्ना पढ़ाया है वो एज इट इज आपको थ्योरी में लिखना है। अब जाके अपन प्रॉब्लम पे जंप करने वाले। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाय हाथ का खेल है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने पूरा थ्योरी बताया ना, इसमें बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अब देखो जो मेरा होता है ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके आते हैं। ठीक है, पहला तरीका आता है कि मैं इसको टॉप TOP टॉप डाउन, इसको मैं टॉप डाउन अप्रोच से सॉल्व करूं या फिर बॉटम अप अप्रोच से सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, जनरली टॉप डाउन अप्रोच में अपन को रिकर्सिव ट्री निकालना पड़ता है। अब रिकर्सिव ट्री देखो मैंने बहुत बार पिछले इसमें, जैसे ये ट्री ए निकाला, ये भी एक तरीके का रिकर्जन ट्री है। ठीक है, तो इस तरीके का ट्री अपन को इसमें निकालना पड़ता है। तो इसमें जनरली टॉप डाउन अप्रोच में अपना जो ट्री ट्रैवल्सिंग था, ट्रैवल्सिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रैवल्सिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो अपना TSP था, उसके कॉन्सेप्ट जनरली इस अप्रोच में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं फिलहाल के लिए नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये जनरली बहुत कम पूछा जाता है, बहुत ही कम, यानी 2% या 3% ही चांसेस हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी होता है। ठीक है, कम से कम 6-7 पन्ने का चला जाएगा। ठीक है, फिर इसलिए मैं आज अपन यही पढ़ेंगे, क्या है अपना बॉटम अप अप्रोच। ये बहुत जल्दी सॉल्व होता है और मैं इसके क्विक शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूँ आपको कि भाई आप शॉर्टकट ट्रिक्स लगा के कैसे इसको फटाफट सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अपन सॉल्व करेंगे बॉटम अप अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम, ठीक है। अब एग्जैक्टली अब बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, देखो बॉटम अप अप्रोच मतलब जो अपना नीचे से होता है, जो अपना जैसे कि सपोज मैंने ये मैट्रिक्स निकाल दी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ तो भी कॉलम्स है। ठीक है, ऐसे 3-4 कॉलम निकाल दिए और ऐसा, तो ये जो मेरा आखिरी वाला बॉक्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को इसमें फाइंड करनी पड़ती है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होती है वही अपन को फाइंड करके इसमें देनी पड़ती है। लेकिन ये वैल्यू आएंगी कैसे, ये वैल्यू आएंगी पहले जब मेरे पास ये इसकी वैल्यू होंगी,
इसकी होंगी, इसकी होंगी, जब तक मेरे पास इनकी वैल्यू नहीं होंगी तब तक मैं इसकी वैल्यू पे नहीं जा सकता। तो इसके लिए मुझे इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तब जाके मेरे को ये पास मेरा जो फाइनल बॉक्स है उसकी वैल्यू मिलती है और वो मेरा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से अपन को बॉटम अप अप्रोच सॉल्व करना पड़ता है। अब इतना तो हो गया, उसके बाद में और क्या करना पड़ता है, क्योंकि नाम तो दिया है बॉटम से अप यानी नीचे से ऊपर जाना है। तो अब मैंने पूरे वैल्यूज तो कैलकुलेट कर देना, यहाँ पे क्या रहेगा 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज रहेंगे, लेकिन मेरे को सॉल्व क्या करना था, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। मेरे को सॉल्व क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो ये तो बहुत छोटा मैट्रिक्स बना है, बहुत बड़ा मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, तो बाद में मैं बॉटम से, मैं पहले यहाँ पे रहूंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं इधर, यानी एक एक रो में ऊपर ऊपर चलते चलते एक एक रो ऊपर जाऊंगा, तो तब मेरा बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे यूज होता है। अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब मैं पूरा एक डिटेल में एग्जांपल सॉल्व करूंगा उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बॉटम अप अप्रोच एग्जैक्टली यूज कैसे होता है। ठीक है, तो अपन आज एक एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक बड़ा वाला एग्जांपल भी कवर करूंगा, अगर वीडियो जल्दी जल्दी समझा के हो जाएगा तो मेरा। ठीक है, अदरवाइज मैं कल दूसरा पार्ट 2 डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, x है और y है। तो x में मेरे पास स्ट्रिंग दी है a b c और d, और y में मेरे पास स्ट्रिंग दी है a e d और f। ठीक है, अब देखो मैंने एकदम इक्वल नंबर की स्ट्रिंग ली ताकि आप जल्दी कैचअप कर पाओ। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है, इतनी इजी स्ट्रिंग कभी नहीं आती है, सिर्फ 4 ही नंबर की। पेपर में आएंगे तो कम से कम 8 से 7 यानी 7 to 8 एलिमेंट्स वाली स्ट्रिंग आएंगी। ठीक है, बहुत छोटी स्ट्रिंग है, इतनी छोटी कभी नहीं आती, लेकिन समझने के लिए छोटा ही एग्जाम्पल लेना चाहिए। ठीक है, अब एग्जैक्टली अब मुझे करना क्या पड़ता है, देखो जो भी अपना रहता है, ये कितना है अपना, ये देखो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू लिख दी। तो m मतलब x होता है, कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4। n मतलब y की वैल्यूज होती है, तो y की कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4। अब हमको कुछ नहीं करना पड़ता, अपन को क्या करना पड़ता है, +1 कितनी आई इसकी वैल्यू 5 आई, इसकी भी 5, यानी कि इतना क्या रहेगा 5 रोज रहेंगे, 5 क्या रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे मेरे पास। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि 5 रोज रहेंगे और 5 कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली देखो, अब ये चेंज भी होता है, अगर सपोज मैंने x में एक दो एलिमेंट ज्यादा डाल दिए तो वो अलग आएगा। ठीक है, कॉलम। ठीक है, तो वो अलग आएंगे, यानी यहाँ पे कितने 6 रोज बनेंगे, यानी ऐसे ऐसे 6 रोज जाएंगे और कॉलम उसके रिस्पेक्टिवली रहेगा जो वाई में स्ट्रिंग रहेंगे। ठीक है, अब अपन पटाख से इसका मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं पहले मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ फिर आपको शो करता हूँ। ओके ओके, तो मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सबसे पहले मेरे को कितने 5 रोज एंड 5 कॉलम निकालने। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया मेरे 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा एक बॉक्स बना दिया, ये मेरी पहली मैट्रिक्स का, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथा कॉलम और ये रहा मेरा 5वां कॉलम। कुछ इस तरीके से मेरे वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब इसमें से आड़ी आड़ी डंडी आपको करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से मेरे पास स्ट्रिंग अवेलेबल थी मैंने उस तरीके से लिया। ठीक है, एक मैं हो सके पॉसिबल तो मैं इसी वीडियो में कवर करता हूँ एक थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आप जल्दी कैचअप करो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखना, यहाँ पे 0 लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, ये वाली आपकी जो भी ये वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा m की वैल्यू। ठीक है, यानी जो m है, m मतलब ये, यहाँ पे मैं ऐसे नोट भी कर देता हूँ, ये m है और ये क्या है, n है। तो m कहाँ पे लिखेंगे, ये वाला, यानी जो ऐसी वाली वैल्यू है ये m की रहेंगी और ये क्या रहेंगी तुम्हारी n की वैल्यूज। ठीक है, तो n की स्ट्रिंग क्या है, a e d f। तो यहाँ पे मैंने लिखा a, यहाँ पे लिखा e, यहाँ पे लिखा d, यहाँ पे लिखा f। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट ये क्या है, m की लाइन है, तो m की क्या है a b c d। तो यहाँ पे मैंने लिखा a, यहाँ पे मैंने लिखा b, यहाँ पे मैंने लिखा c और यहाँ पे मैंने लिखा d। इतना क्लियर हुआ। इस तरीके से अपन को क्या निकालनी पड़ती है, मैट्रिक्स का नहीं, ये बॉक्स निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 into 5। ठीक है, ये लिखा या नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसको मैट्रिक्स नहीं बोलते जनरली, इसको बॉटम अप अप्रोच ही बोलते हैं, लेकिन समझाने के लिए अपन सब लोग इसको मैट्रिक्स से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स ऐसे बोल बोल के समझाते हैं। ठीक है, उतना समझ जाओ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले, ठीक है, इतना लिया, अब आपको एक एक आपको क्या करना है, आपको जो ये बॉक्स दिया है इस वाले बॉक्स के अपन को क्या करनी पड़ती है, फाइनल अपना ये क्या है, आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है अपन को वही निकालनी है, बाद में फिर मैं इस बॉक्स से एक एक करके ऐसे बॉटम अप अप्रोच यूज करूंगा, बाद में कॉमन अपने क्या है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करूंगा। ठीक है, तब जाके मेरा बॉटम अप अप्रोच यूज होगा। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 0,0, ये वाली वैल्यू किसकी है,
n की, यानी n की वैल्यू 0 है और m की भी वैल्यू 0 है। अब मेरी कंडीशंस क्या थी, अब यार कंडीशंस यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है क्या इस पन्ने पे, एक काम करता हूँ मैं नीचे में ना कंडीशंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले पटापट अपन अभी कैमरा ऑन है तभी लिख देते पटपट, क्या था लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ m कॉमा n, ठीक है। इसके हिसाब से मेरी पहली सीक्वेंस क्या थी, मेरे पहला कंडीशन क्या थी, 0 आएगा, कब आएगा, इफ m इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 0 रहेगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्या था मेरे पास, 1 प्लस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ m माइनस वन n माइनस वन, कब रहेगा, इफ कब रहेगा ये, जब मेरा x ऑफ m की क्या रहेंगे, यानी जैसे कि देखो इसमें d और f है, मतलब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं होने वाला है, आप समझ जाओ तुरंत, ठीक है। डायरेक्टली समझ में आता है कि भाई वो यूज ही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, हाँ इक्वल्स टू एक्स ऑफ सॉरी वाई ऑफ एन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था मेरा मैक्सिमम, नेक्स्ट क्या था मेरा मैक्सिमम के फॉर्मूलेज लगते थे। नेक्स्ट मैक्सिमम में क्या लगते थे मेरा, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस ऑफ एम को एज इट इज रखो, एन को एज इट इज रखो, यहाँ पे एन में से एक काटो, यहाँ में से एम में से एक काटो और बंद करो। कब लगानी है, जब इफ मेरा एक्स ऑफ एम इज नॉट इक्वल्स टू वाई ऑफ एन, जब भी मेरी ऐसी कंडीशन आती तब मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो अब फिलहाल के लिए मैं किसको फाइंड कर रहा हूँ, जीरो को फाइंड कर रहा हूँ, मतलब मेरी m की भी वैल्यू 0 है, n की भी वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आएगा 0, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 0। नेक्स्ट क्या है मेरा a और यहाँ पे क्या है 0, यानी m की वैल्यू तो देखो मेरी स्टिल 0 ही है। अब देखो इस पूरे रो के लिए मेरी m की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब मैं बिना चेक करे डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली वैसा ही होगा इस पूरे कॉलम के लिए, n यानी जो n है, n की वैल्यू क्या है पूरे इस कॉलम के लिए 0 है, मतलब यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं 0 लिख दूं। इतने तो अपने कॉमन वैल्यूज हो गए, ठीक है। अब मैं वापस से और एक बॉक्स निकाल के नहीं समझाता, मैं इसी में डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरा ए, अब क्या आ गया, देखो ये वाली कंडीशन लगेगी, a और a आ गया सेम सेम, जब भी मेरा सेम आता है तो मुझे क्या करना है, एक माइनस करना है और बाद में प्लस करना है, यानी 1 प्लस m माइनस वन n माइनस वन। तो देखो इसको फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको, कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो कहा गया, एक मिनट, अपन फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्या था मेरे पास, ए का था, ठीक है, ए और ए का था, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ ए कॉमा ए, क्लियर है इतना, ए कॉमा ए मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अपना, अच्छा पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है ना, अभी आ रही है ना, हाँ ठीक। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, तो इसके हिसाब से 1 प्लस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ m माइनस वन, m की वैल्यू क्या है a मतलब एक ही है ना, ये एक यानी 1,1 है, ठीक है। अब ये a लिखो, यानी a क्या होगा तुम्हारा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब समझा मैं क्यों मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोल रहा था, इसी के लिए, ताकि आपको समझे कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ए लिखने से अच्छा तुम 1 भी लिख सकते हो, तो भी इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ n माइनस वन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, 1 प्लस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ m की वैल्यू क्या है a मतलब क्या होगा मेरा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस वन। नेक्स्ट क्या है, n की भी वैल्यू a है, मतलब वापस से 1 ही होगा। 1 कहाँ से आया बोलोगे तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, जो ही मेरा ए बी सी डी था मैंने उसको 1 2 3 4 दे दिया, यहाँ पे भी ए डी ई एफ था उसको भी 1 2 3 4 दे दिया, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने, ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट जैसे मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, अब क्या होगा, यहाँ से भी -1 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ क्या आएगा 0,0। अब देखो 0,0 का आंसर कितना आया है मेरा 0,0, तो ये रहा 0, ये भी रहा 0, 0,0 का आंसर कितना आया था 0, ठीक है। अब समझा, 1 प्लस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ 0,0 0 निकला, 1 प्लस 0 आंसर कितना आया 1, मतलब मेरा जो ये बॉक्स है ए कॉमा ए और ए का, तो उसमें क्या आंसर आएगा 1। अब समझा, जो मैंने यहाँ पे बेस्ट केस पढ़ाया था, कहा गया बेस्ट केस, हाँ ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि मैं क्या करूंगा, फिर चेक करूंगा कि 2,2 की वैल्यू कितनी है, फिर उस हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। तो समझा 2,2 की वैल्यू कहाँ से आएंगी, वो इस वाले मैट्रिक्स से आएंगी, ये जो मैट्रिक्स बन रही है यहाँ से अपन को वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, अब मुझे किसका निकालना है, ए कॉमा बी का, ठीक है। अब देखो ए कॉमा बी का कैसे निकालेंगे,
ए और बी है, मतलब मेरा जो ये फॉर्मूले थे उसके हिसाब से मेरा एक्स और एन अलग अलग है, मतलब ये वाला कंडीशन लगेगा। और इसमें अपन को क्या निकालना है, दोनों का मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, 1,2 है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिखो, फिर भी लिख देता हूँ, ए कॉमा बी इतना है, जिसी को अपन 1,2 भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें अपने कौन सी वाली कंडीशन लगेंगी, मैक्स वाली कंडीशन लगेंगी। मैक्सिमम में क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ m कॉमा n माइनस वन, एक तो ये लगेगा, या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ n m माइनस वन, एक तो ये लगेगा, ठीक है। फटाफट ये वाला लगाते हैं, मैक्सिमम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ m की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने 1 एज इट इज रखा। फिर क्या है, n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 में से 1 माइनस करना है, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यानी 2 माइनस 1 ऑफकोर्स 1 ही होता है, उतना समझो, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होगा, मेरे को एक बड़ा वाला एग्जांपल भी लेना है। नेक्स्ट, तो इसका क्या आएगा 1,1, यानी 1 और 1 ये वाले रहे 2 1, उसका आंसर क्या है, ये कितनी आ रही है, इसकी आंसर वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, वापस से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस है, क्या है, n की वैल्यू एज इट इज यानी 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2 कॉमा, एक सेकेंड, 2 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, अरे ये तो निकलेंगे नहीं ना, 2 कॉमा, ओके ओके जाने दो, छोड़ दो, इजी है समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा m-1, m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो 2,0, तो ये रहा 2 और ये रहा 0, ठीक है। रो रो रो, ये क्या है रो, यानी ये क्या है m और ये क्या है n, तो m मतलब क्या है आड़ा वाला, ये वाला m, तो यहाँ पे 2 क्या है, ये मैं उसी में अभी कंफ्यूज हो रहा, मैं ये 2 में इधर ढूंढा था कि भाई इधर 2 है तो ये वाली वैल्यू तो निकली नहीं, तो वहां पे कौन सी वैल्यू आएंगी। अब मेरी बत्ती जल गई कि m आड़े वाले हैं और n ऐसे वाले हैं, ठीक है। तो m कहाँ पे रहा, ये तो m यानी 2 यानी b यहाँ पे था, ठीक है। 2,0, 2,0 यानी ये कितनी है 0, तो इसका आंसर कितना आया मेरे पास 0। कौन सा हाईएस्ट है दोनों में से, ऑफ कोर्स 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1। तो इसी तरीके से आपको सेम बाकी सारे बॉक्सेस के वैल्यूज निकालने फॉर्मूले लगा लगा के, बट अब अपन इसमें एक शॉर्टकट यूज करेंगे, ठीक है। इतना लेंदी लचक प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। देखो क्या करना है, जब भी आपका सेम एलिमेंट आता है तो डायगोनल को कंसिडर करो, जब भी डिफरेंट आता है तो ऊपर एक ऊपर वाला और एक बगल वाला देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर सेम रहा, सेम सेम यानी कैसे रहा, सेम सेम कैसे रहेगा, ऐसे ए ए रहेगा, या फिर बी बी रहेगा। अब इसके हिसाब से यहाँ पे सेम सेम देखो, स्ट्रिंग में क्या है सेम, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी डी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डी और डी लिख देता हूँ, और तो कोई सेम एलिमेंट है नहीं। वही से मेरे को देख के पता चल रहा है कि भाई मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन क्या निकलेंगी, ए और डी, यही मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस निकलने वाली, लेकिन स्टिल मेरे को इतना पोता पुरान दिखाना है उसको कैसे निकली, ठीक है। तो अब जब भी अगर ऐसा सेम सेम आता है, अगर सेम सेम आया तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, मैं डायगोनल के पास जाऊंगा, डायगोनल, मैं किसके पास जाऊंगा, मैं डायगोनल की वैल्यू, यानी जैसे देखो अब मेरा कहाँ पे देखो, ये भी डी है और ये भी डी है, मतलब ये वाली वैल्यू में कौन सा करूंगा, मैं ये वाली वैल्यू में ये वाला डायगोनल, यानी इस डायगोनल की वैल्यू में यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन डायगोनल के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ता है, सेम आया मतलब मेरा फॉर्मूला कौन सा, सेकंड वाला फॉर्मूला लगता है, तो सेकंड वाले फॉर्मूला देखो +1 लिखा है, मतलब क्या होगा, डायगोनल की तो वैल्यू में एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे, बट साथ ही में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे +1 भी करूंगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, अब इतने फॉर्मूले लगा लगा के आप सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी आंसर आएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या करना, डायगोनल की वैल्यू देखना, +1 कर देना। फिर नेक्स्ट, अगर डिफरेंट रहा तो, ठीक है, अगर डिफरेंट रहा तो, डिफरेंट मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, अदरवाइज यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, या फिर यहाँ पे ई है, इसके अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ए है। अगर ऐसे डिफरेंट रहा तो मैं किसको कंसिडर करूंगा, डिफरेंट रहा तो लेफ्ट एंड अप, ठीक है। यानी एक डब्बा लेफ्ट का है, जैसे कि अब मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये वैल्यू किसकी रहेंगी, ए की और सी की। तो देखो ए और सी डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब लेफ्ट, मतलब इस डब्बे के लेफ्ट क्या है, ये वाला 1, और बाद में इस डब्बे के ऊपर वाला कौन सा है 0, यानी 1 और 0 में से जो हाईएस्ट है वो वाला लिखूंगा। हाईएस्ट क्यों हाईएस्ट, देखो अलग अलग है, ए और सी था,
मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा मेरा तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर में मैं क्या निकालता हूँ, मैक्सिमम। तो ये जो मैंने लिखा है एम एन माइनस वन मतलब कौन सी है, ये वाली वन की वैल्यू होगी, और नीचे में जो मैंने लिखा है एन एम माइनस वन कौन सी हो गई, ये जीरो, यानी इन दोनों में से कौन सी मैक्सिमम है, ऑफकोर्स वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन। उस तरीके से लेफ्ट एंड वन, बट यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंसिडर कंसिडर मैक्सिमम। ठीक है, किसको कंसिडर करना है, मैक्सिमम को कंसिडर। अब देखो, अब फटाफट अपन इसको सॉल्व करते हैं, विद इन 5 मिनट्स के अंदर अपना देखो अब ये पूरा सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। ठीक है, और जब ये दिख रहा है क्या फॉर्मूला, हाँ ये दिखना चाहिए आपको, ठीक है, वरना कंफ्यूज होंगे। ए और सी निकालना है, यानी डिफरेंट वाली कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन में क्या बोला है, इस बॉक्स के लेफ्ट में जाओ, यानी ये वाला, ये वन, यानी मैं किसको कंसिडर करूंगा, मैं वन को कंसिडर करूंगा, लेफ्ट वाला मेरा फिनिश। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो अप, यानी इस बॉक्स के ऊपर वाला, यानी कौन सा, जीरो। अब इन दोनों में से मैक्सिमम को कंसीडर करना है, क्या है मैक्सिमम, वन। तो इस बॉक्स में का आंसर क्या आएगा, वन। आप कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूलेज लगा के वन ही आने वाला है फिर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ए और डी, वापस से कौन सा डिफरेंट वाला ही कंडीशन लगा, ए और डी। मतलब क्या देखना है मेरे को, लेफ्ट वाला एक डब्बा देखना है, ऊपर वाला। तो इस बॉक्स के लेफ्ट वाला क्या है, वन, और इस बॉक्स के ऊपर वाला क्या है, जीरो। तो वन और जीरो में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स वन है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अब नेक्स्ट, अब आते हैं इस पे, यहाँ पे क्या है, ई और ए है, क्या है, ई और ए। अब देखो आपने इसका भी आंसर वैसा ही निकाल सकते, जो मैंने यहाँ पे लगाया इतना फॉर्मूला नहीं लगाना था। देखो सेम सेम वैल्यू है, ए और ए, मतलब क्या लेना पड़ता था, इस बॉक्स का डायगोनल। डायगोनल मतलब कौन सा, ये वाला जो ऐसा डायगोनल जा रहा है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे क्या है, जीरो, लेकिन डायगोनल में क्या करना है, डायगोनल प्लस वन, यानी जीरो प्लस वन, आंसर वन डायरेक्टली मिल रहा था आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, एक बार फॉर्मूला लगा के क्रॉस चेक कर लेना। फॉर्मूला इसलिए लगाना है क्योंकि आपको ये रिकर्सिव इक्वेशंस लर्न करा रहे थे, दैट्स व्हाई मैंने फॉर्मूले लगा लगा के निकाले। ठीक है, ना मैं भी नहीं लगाने वाला था फॉर्मूले, बट ये इक्वेशंस पेपर में लिखने पड़ते तभी मार्क्स मिलते, इसीलिए वो फॉर्मूला लगा रहा था मैं। ओके, अब देखते, अब ई और ए का निकालना है। ठीक है, तो ई और ए डिफरेंट है, मतलब ये वाला लगेगा, एक लेफ्ट साइड का देखो और एक ऊपर वाला। तो इस बॉक्स का लेफ्ट है जीरो, ऊपर वाला है वन, कौन सा हाईएस्ट है, जीरो और वन में से, ऑफ कोर्स वन है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, वन। अब नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, इसमें क्या है, ई और क्या है, बी। तो अब इसका डिफरेंट केस का ही सिनेरियो लगेगा, लेफ्ट और अप वाला देखो, लेफ्ट में वन है, ऊपर में भी वन है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी वन ही आएगा, दोनों भी सेम सेम है, दोनों में से कोई भी कंसिडर करो क्योंकि दोनों वन वन यानी मैक्सिमम ही है। अब इसमें भी क्या है, ई और डी, ई और सी है, तो ई और सी के लिए मतलब वही डिफरेंट वाली कंडीशन, लेफ्ट और अप वाली पकड़ो, लेफ्ट में भी वन है, ऊपर में भी वन है, दोनों भी सेम है, मतलब वन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ई है और क्या है, यहाँ पे डी है, डी का आज मतलब देखो ये पूरा डी है, ये वाली पूरी रो ई है, इतना तो समझ गया होगा आपको अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट है, यही सिनारियो लगेगा, टाइप को उड़ता है रे तू बार बार। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंट सिनारियो लगेगा, ऐसा रखो क्या, हाँ अब दिख रहा है, ओके हाँ। तो यहाँ पे डिफरेंस है, एक लेफ्ट का पकड़ो, एक ऊपर वाला पकड़ो, यानी एक ये और एक ये, तो वन और वन ही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, अब ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इतना छोटा नहीं, मेरे को दूसरा भी लेना है बड़ा वाला, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब डी है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, डी और ए, अच्छा माइलर। ठीक है, डी और ए डिफरेंट डिफरेंट है, वापस वही कंडीशन, जीरो और वन में से बड़ा क्या है, वन। पटापट करते, क्या है यहाँ पे, डी और बी, वन और वन है, मतलब ये आएगा। ठीक है, वापस क्या है, डी और सी, वन ही आएगा। अब देखो, अब आएगा असली ट्विस्ट, डी और डी आ गई सेम वैल्यू। जब भी सेम वैल्यू आती है तो क्या करना है, डायगोनल वाली वैल्यू कंसिडर करनी है और उसमें एक एडिशन करना है। डायगोनल वैल्यू क्या है, इसकी डायगोनल वैल्यू ये रहेंगे, ऐसा ऐसा डायगोनल ऐसा जाता है ना, आड़ा, ऐसा आड़ा डायगोनल जाएगा, तो ये वन वाली वैल्यू है, तो वन में क्या करना है मेरे को, एडिशन वन करनी है। तो वन में एडिशन वन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, देखो अब एक वैल्यू अपनी बदल गई, अब यहाँ पे भी कुछ बदलने वाली है लगता। ठीक है, अब एफ और ए डिफरेंट है, मतलब जीरो और वन में से बड़ा क्या है, वन, तो वन लिखा। फिर एफ और बी, एफ और बी मतलब डिफरेंट है, तो वन वन में से बड़ा क्या है, वन ही बड़ा है, वन ही लिखो। फिर क्या है, एफ और सी वापस से डिफरेंट है, तो वन वन में से क्या बड़ा है, ऑफकोर्स वन ही बड़ा है, वापस से वन लिखो। फिर क्या है, एफ और डी, वापस से दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ गए। डिफरेंट इन द सेंस क्या है डिफरेंस, देखो ये है, ए और बी डिफरेंट है, ए और ए सेम था, समझा, इसे मैंने सिर्फ दो ही बताया आपको। तो यहाँ पे देखो एफ है और यहाँ पे क्या है, डी है, तो ये डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट है ना, डिफरेंट है मतलब केस थ्री मैक्सिमम वैल्यू लगेंगी। तो मैक्सिमम के लिए क्या है, एक तो ये या तो ये, यानी लेफ्ट साइड में जाओ या तो ऊपर वाले में देखो,
ऊपर वाला लेफ्ट वाले की वैल्यू बड़ी होंगी तो वो लिखो, या फिर ऊपर वाले की वैल्यू बड़ी होंगी तो वो लिखो। तो इसमें लेफ्ट में क्या है 1 और ऊपर वाले बॉक्स में क्या है 2, तो ऑफकोर्स 2 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2 आएगा। तो मेरा यहाँ का फाइनल आंसर मेरे को मिला 2। ठीक है, आपको पेपर में दिखना पड़ता है कि इसका फाइनल आंसर आता है 2, बट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, अब असली गेम चालू होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। अब मैंने इतना लिख दिया, लेकिन अब मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है बॉटम अप अप्रोच। अब मैं यहाँ से एक एक करके पूरा कंपेयर करूंगा और मेरे को क्या निकालनी है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस निकालनी है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिंग्स, इन दोनों स्ट्रिंग्स के हिसाब से। तो ये दो स्ट्रिंग्स मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ओरली एक आंसर बताता हूँ कि कैसा आ सकता है। देखो मेरे पास क्या है, एक x है और एक क्या है y है, दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो x में क्या है a b c और d, y में क्या है a e d और f है, इतना। अब देखो, अब इसमें देखो टैली कैसे करेंगे, ए मैच हो गया, मतलब a मेरा निकलने वाला है सबसे पहले। नेक्स्ट b है क्या, ऐसा ऐसा मैच करो। ठीक है, b है क्या, नहीं है b, तो b नहीं आएगा। c है क्या, c भी नहीं है। d है क्या, हाँ जी d मेरे को मिला, d भी मैच हुआ, मतलब a और d यही मेरा क्या निकलने वाला है, फाइनल आंसर निकलने वाला है एज अ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी वहां पे एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है किसी से भी। तो यही मेरा फाइनल आंसर, मैंने ओरली बता दिया, जैसे अजम्पशन लगा दिया कि भाई मेरा एक्चुअल आउटपुट यही आना, यानी सॉरी मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट यही है। लेकिन जब मैं इसमें बैक प्रोपोगेशन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, बॉटम अप, हाँ बॉटम अप अप्रोच जब मैं इसमें लगाऊं तो क्या मेरा एक्चुअल आउटपुट और जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो दोनों मैच करते या नहीं करते, वही मेरे को यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना है। तो देखो इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा हार्ड है तो अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना वैल्यू मिला है, मुझे 2 मिला है। कहाँ से मिला ये 2 की वैल्यू, एफ और डी था, अलग था। अलग है मतलब मैं कहाँ से आया, एक तो मैं बाजू से आया होगा या तो मैं ऊपर से आया होगा। तो मैं बाजू में 1 है, ऊपर में 2 है, मतलब ऊपर से ही वैल्यू लिखी होंगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा। गया मैं ऊपर, ऐसा मैंने छोटा सा एरो दिखा दिया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 कहाँ से आया मेरे को, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, सेम सेम है, सेम है मतलब मैं कहाँ पे गया, डायगोनल गया। मतलब देखो जब भी मैं जैसे मैं डायगोनली मूव हुआ, तो डायगोनल किसके लिए मूव हुआ, मैं डी के लिए। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या फिक्स हो गया, डी। डी मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में बुक हो चुका है। अब नेक्स्ट, अब मैं कहाँ पे आया, 1 पे आया। अब ये 1 किसका है, सी का है और ई का है, दोनों भी डिफरेंट है, मतलब एक तो मैं यहाँ से आया नहीं तो यहाँ से आया। अब देखो यहाँ पे वापस से ट्विस्ट है, अब लास्ट टाइम भी ऐसा था कि मैं यहाँ से और यहाँ से आया था, बट यहाँ पे डायरेक्ट दिखा था कि भाई 2 मेरा बड़ा वैल्यू है, मैं डायरेक्ट 2 के तरफ मुड़ गया था, 1 को मैंने डायरेक्ट डिसलाइन कर दिया था। बट यहाँ पे क्या है, 1 है और 1 है, मतलब कि एक तो मैंने 1 की आंसर यहाँ से लाई होंगी या फिर मैंने 1 की वैल्यू यहाँ से उठाई होंगी। अब दो पॉसिबिलिटी है, अब मैं यहाँ से भी पूरे चेक करूंगा और यहाँ से भी पूरे चेक करूंगा, इसी को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। में सबसे नीचे में था, देखो मैं एक 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 करके चेक चेक करते जा रहा हूँ, इसी को अपन बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब देखो, अब ये वाला 1 फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, ये वाला कंसिडर करते हैं। ये वाला किसका वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ऑफकोर्स दोनों डिफरेंस है, मतलब एक तो मैंने इसको ऊपर से उठाया होगा या तो इधर से उठाया होगा, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि भाई मैंने इसको यहीं से उठाया है। ठीक है, तो ये वाला आंसर, ये वाला वैसे भी अपना 0 आ गया, तो फर्स्ट कंडीशन जो अपनी यहाँ पे लगी थी, फर्स्ट कंडीशन लग गई तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, मतलब ये काउंट नहीं होगा, अपन को इधर ही मूव करना है। ठीक है, अब ये वाला 1 कहाँ से आया, बी का 1 है, ए का 1 है, बी और ए अलग अलग है, मतलब एक तो वो ऊपर से आया होगा या तो बाजू से आया होगा। तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ऊपर में 0 है, बाजू में 1 है, मतलब वो हायर वैल्यू, यानी हायर वैल्यू है तो 1 इधर से आया होगा। अब ये वाला 1 कहाँ से आया होगा, एक तो ये ए का है और ए का है, देखो वापस से सेम आ गया, यानी जो यहाँ पे आया था डी डी, यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। तो जब भी सेम आता है तो मैं कहाँ से लाता हूँ वैल्यू, डायगोनल से लाता हूँ। तो मैं कहाँ पे मुड़ा, मैं मुड़ा डायगोनल की तरफ, और डायगोनल में मुझे मिला 0, मतलब यहाँ पे मेरी ये वाली केस भी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। लेकिन डायगोनल मुड़ा किसको किसको लेके मुड़ा, मैं ए को लेके मुड़ा, मतलब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्या मिला, मेरे को ए मिला। तो यहाँ से मेरा ए और डी मेरा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कंसिडर हो चुका है। अब नेक्स्ट, ये वाला कंसिडर तो हो गया, लेकिन देखो ये वाला पाथ मेरा अभी भी बाकी है। अब ये वाला 1 कहाँ से आया था, ये वाला 1 किसका है, बी का है और ई का है। ठीक है, अब देखो बी और ई का 1 है, मतलब कि वो एक तो यहाँ से आया होगा या तो यहाँ से आया होगा। तो अगर मैं इधर गया या फिर मैं इधर गया, अब अगर मैं इसको देखा तो ये इसका और इसका आया होगा, तो इधर तो वो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ऑफकोर्स वो यही से आएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी कवर हो चुकी है। मतलब मैं इसको देखूंगा, ये किसका 1 है, ए का है और ई का है, मतलब वापस एक तो इधर या तो इधर,
पर इधर 0 है, इधर 1 है, मतलब मैं ऑफकोर्स इधर ही गया होऊंगा, हायर पॉसिबिलिटी। और यहाँ की देखो वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, मतलब मेरे को और भी कोई लॉन्गेस्ट कॉमन मिल नहीं रही है, मतलब मेरा ए और डी ही लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मेरे को मिल रहा है। मेरा एक्चुअल आउटपुट भी मेरे पास ए और डी आया, और जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड निकाला था वो भी ए और डी ही निकला था। मेरा एक्चुअल और मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों यहाँ पे क्या हो गए, मैच हो गए। मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है, मेरा सॉल्यूशन पूरा बराबर है। तो आपको इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स बनाना है, फिर इसी तरीके से एरोस दिखाने हैं, फिर इसी तरीके से आपको ऐसे लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस दिखाने हो, बाद में आखिरी में बस एक छोटा सा सेंटेंस लिख देना, हेंस दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ द अबव गिवन स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, अच्छे से मेंशन करना पूरा। बाद में LCS ऑफ m कॉमा n लिख के AD लिख देना, और आगे में ऐसे इक्वल्स टू 02 लेंथ लिख दो या फिर 02 लिख दो, और यहाँ पे ऐसे आगे लिखना LCS m कॉमा n, ऐसा अच्छे से लिखना। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइनल आंसर लिखना है। मैं इसका पूरा डिटेल में आपको आंसर भेजूंगा कल, आपको पूरा डिटेल में इसका मैं पोस्ट डालने वाला हूँ कल वापस से, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में आंसर दिखेगा। लेकिन मैं ये ऐसा चिल्लर सा एग्जाम्पल नहीं लेने वाला हूँ, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इतना छोटा कभी पेपर में आता नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हार्ड वाला एग्जाम्पल लूंगा, आप वो प्रैक्टिस करना और फिर आंसर टैली करके देखना कि भाई सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल आएगा तो आपको जो बॉटम अप जो मैंने अप्रोच अभी यूज करा यहाँ पे ऐसा, तो इसमें ना आपको डाउट आता है बहुत बार। तो जो अब मैं बड़ा एग्जाम्पल लूंगा ना, उसमें बॉटम अप अप्रोच का थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूलेज नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रिंग दी है ए और बी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। ठीक है, मेरे पास स्ट्रिंग दी है ए और बी। तो ए में मेरे पास दिया है क्यू पी क्यू, देखो थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग है, क्यू पी क्यू आर 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 आर। और मेरे पास बी में है पी क्यू पी आर क्यू आर पी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी m हो गया, ये मेरा क्या हो गया, n हो गया। तो m की मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5। और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है 7। अब देखो अब क्या होगा, अब मेरे रोज और कॉलम्स के यहाँ पे आंकड़े बदल जाएंगे पूरे। तो यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ m और n, मैंने यहाँ पे m n लिख दिया। ये कितना था, 5 था, 5 प्लस 1 मतलब कितना आएगा मेरे पास, 6 रोज आएंगे, 6 रोज। अब वो आपके ऊपर, अगर आपने m को ऐसे में लिखा आड़े में, यानी ऐसा इसमें आड़े में अगर आपने m को लिखा ऐसे आड़े आड़े m लिखा, तो 6 रोज निकालो। बट 6 रोज उतने सारे, उतने उससे अच्छा कॉलम 6 निकालो ना, आपको ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, वो अपने ऊपर है, कैसे भी निकालो, अपना ही काम, अपना ही राज है। ठीक है, और n में क्या है 7, तो 7 प्लस 1 कितना होता है 8। अब वो तुम डिसाइड करो कि भाई तुम्हें m और n को कहाँ रखना है, तुम्हारे ऊपर। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जैसा बोला था कि ये क्या है रो और ये क्या है कॉलम, तो अपन उसी हिसाब से जाते हैं। ठीक है, तो कॉलम मुझे कितने निकालने हैं 8, और रोज कितने निकालने हैं 6। तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ 1 2 3 4 5 6, आप भी साथ साथ में निकालिए, जल्दी से कवर करते इसको, 10 मिनट में निपटा देते हैं। ठीक है, ये एक हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 निकाल दिए मैंने, 8 रोज और सॉरी 8 कॉलम और 6 रोज। तो ये मेरा क्या था, 0 0 था। अब मैंने ये कितने निकाले, 1 2 3 4 6 रोज। तो यहाँ पे क्या लिखना था मेरे को, ये क्या है इसका 6, मतलब m, m में क्या है q, q p q r r लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, b का p q p r q r, शायद ज्यादा ही बड़ा एग्जांपल ले लिया लग रहा है। अब देखो, अपना सेम फंडा था, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 0 0 ही रहती है, तो बिना पलक झपका फटाफट लिख दो इसमें 0 0 0। सॉल्व करने की बिल्कुल गरज नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसमें मैं एक भी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, p है और q है, दोनों भी अलग अलग है, मतलब क्या लेना पड़ेगा मुझे, एक तो ऊपर वाला एक तो बाजू वाला। तो ये भी क्या है 0 0, मतलब यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, क्या है क्यू क्यू, सेम आया,
सेम आने पे क्या लेना पड़ता है, डायगोनल लेना पड़ता है और +1 करना पड़ता है, तो 0 + 1 1 आएगा, ठीक है। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और ये वाला फाइनल आंसर निकालते हैं, बाद में मैं आपको इसके ऊपर बॉटम अप अप्रोच बताऊंगा और बाद में अपन इसमें का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस निकाल के देखते हैं, बस इतना ही देखना है। ये कैसे सॉल्व करते हैं वो आप अब तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्यू है इस बॉक्स के लिए और पी है, तो पी और क्यू डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब एक तो मैं वन बाजू लेफ्ट कंसिडर करूंगा और बाद में ऊपर वाला कंसिडर करूंगा, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो, तो 1 और 0 में से ऑफकोर्स 1 है, तो यहाँ पे भी 1। यहाँ पे क्या है, पी और क्यू, 1 0 में से मैक्सिमम क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, क्यू क्यू सेम वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ से डायगोनल मतलब ये 0, 0 + 1 होगा, तो 1 0 + 1 1 आता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्यू आर डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब लेफ्ट और ऊपर में जाओ तो 0 और 1 में से ऑफकोर्स 1 है। बाद में क्या है, पी एंड क्यू डिफरेंट डिफरेंट है, लेफ्ट और ऊपर में 0 और 1 में से ऑफकोर्स 0 छोटा है, मतलब सॉरी 1 बड़ा है, मतलब 1 लिखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट रो मेरी सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट पी, पी पी सेम आया, तो डायगोनल, इसका डायगोनल कौन सा है, ये 0, ऐसा डायगोनल जाएगा, तो 0 + 1 मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1 आएगा। क्लियर हुआ इतना। अब नेक्स्ट, एक मिनट, पी और, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, पी का क्यू, पी और क्यू डिफरेंट डिफरेंट है, 1 और 1 ऑफकोर्स यहाँ पे 1 ही आएगा, डिफरेंट है मैक्सिमम वैल्यू लिखो। पी और पी वापस से सेम आया, मतलब यहाँ पे 1 को लेना पड़ेगा। इसका डायगोनल, इसका डायगोनल क्या है, मैं एरो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे वो बैक में क्या है उसका बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे यूज करना, तब मेरे को एरोज बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एरोज दिखा के डायगोनल नहीं दिखा, लेकिन आप समझो यहाँ से डायगोनल कौन सा, ये वाला डायगोनल है, ऐसा जुड़ेगा, ठीक है। अगर ये डायगोनल जुड़ा मतलब 1 आएगा, तो 1 में एक एडिशन करो, मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। क्लियर हुआ इतना। अब 1 1 2, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पी और आर डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों में से बड़ा क्या है, 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या है, पी एंड क्यू डिफरेंट डिफरेंट, दोनों में से बड़ा क्या है, 2, पी एंड आर दोनों में से बड़ा क्या है, क्यू। अब मैं समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी एंड पी सेम आया, डायगोनल में जाओ 1 है, 1 + 1 2 आया, ठीक है। इस तरीके से जाना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको फटाफट ये सब भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पी एंड क्यू डिफरेंट है, दोनों में से बड़ा क्या है, 1 है। क्यू और क्यू सेम है, दोनों में यानी डायगोनल जाऊंगा, डायगोनल में क्या है, 1 1 + 1 आएगा 2। फिर क्या है, क्यू एंड पी अलग अलग है, तो दोनों में से बड़ा क्या है, 2, तो 2 लिखूंगा। क्यू एंड आर अलग अलग है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। बाद में क्या है, क्यू क्यू सेम है, तो 2 + 1 3 आएगा। बाद में क्या है, क्यू एंड आर डिफरेंट है, तो यहाँ पे आएगा 3। बाद में क्या है, पी एंड क्यू ये भी अलग है, तो यहाँ पे भी आएगा 3। आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए साथ साथ में, ठीक है, ऐसे देखते मत रहो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आर एंड पी डिफरेंट डिफरेंट है, तो 0 और 1 में से 1 आएगा। आर एंड क्यू भी अलग अलग है, तो 1 और 2 में से 2 आएगा। आर एंड पी भी डिफरेंस है, तो 2 और 2 में से 2 आएगा। आर आर सेम है, तो 2 + 1 3 होगा। पी एंड क्यू अलग अलग है, तो 3 आएगा, इसमें भी 3 और 3 सेम ही निकल रहा था। आर आर वापस से सेम है, तो 3 + 1 4 होगा। आर क्यू अलग अलग है, 3 और 4 में से 4 बड़ा है, तो 4 आएगा। अब आर और ये अलग है, तो यहाँ पे आएगा 1। ये भी अलग है, तो यहाँ पे आएगा 2। ये अलग है, यहाँ पे भी आएगा 2। ये आर आर सेम है, 2 + 1 3 आएगा। अलग है, तो यहाँ पे आएगा 3। ये भी क्या है, सेम है, तो 3 + 1 4 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 4। तो मुझे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन का आंसर मिला 4, ठीक है। मतलब मेरे लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस जो निकलेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट बोलो या फिर स्ट्रिंग बोलो, कितने होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाल लेता हूँ पटाख से नीचे लिख के, ठीक है। मेरे पास ए है, बी है, अरे यार जगह नहीं छोड़ी, कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है। क्यू पी क्यू आर आर पी क्यू पी आर क्यू आर पी। अब इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन निकालते, सबसे पहले क्यू आया, तो ये वाला क्यू ऐसा जुड़ा, तो यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, क्यू एक निकला। नेक्स्ट पी और पी, देखो ये वाला भी पी वापस से ऐसा ऐसा जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट पी आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, क्यू, अगर मैंने इस वाले क्यू को जोड़ा, ठीक है चलो जोड़ ही देते हैं, ऐसा एक क्यू जुड़ा, तो वापस से क्यू आ रहा है। नेक्स्ट एंड क्यू क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना आर, तो ये वाला आर इसको छोड़ देते, इस वाले को जोड़ देते, ठीक है। इस आर को जोड़ा तो एक ये निकलती, लेकिन
पॉसिबिलिटी देखो और भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मैं अभी उसी के लिए कंफ्यूज हुआ। यहाँ पे पॉसिबिलिटी मेरे को और एक दिखी। मेरे पास क्या है, ए और बी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्यू पी क्यू आर आर। यहाँ पे क्या है, पी क्यू पी आर क्यू आर पी। एक ये था। अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास ऐसे भी बन के आती है। अगर मैंने इस पी और इस पी को कंसिडर करा सबसे पहले, तो यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग स्ट्रिंग क्या होंगी, पी। मतलब देखो दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आने वाले और उसमें से मेरे को लॉन्गेस्ट वाली कंसिडर कर, तो ये भी 4 की आई। अगर इसमें भी गलती से 4 की बनी तो मतलब यहाँ से 2-3 तरीके के अप्रोच अपन को मिलने वाले हैं। तगड़े लेवल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कितना वीडियो हुआ, अरे बाप रे 1 घंटा हो गया क्या, ठीक है। अब ये यहाँ देखो, मैं क्यू की को भी कंसिडर करता है, पी के बाद क्यू भी आ सकता है। फिर आर, ये वाला आर आर कंसिडर होगा, आर भी आएगा। ये वाला भी आर आर कंसिडर करना, देखो ऐसा एक सीक्वेंस मिला। और एक मिल सकती है, ठीक है। अगर मैंने क्यू क्यू को कंसिडर करा तो क्यू मिलेगा सबसे पहले। फिर मैं पी पी को कंसिडर करता हूँ तो बाद में क्यू पी मिलेगा। फिर इस आर को करता हूँ और फिर आर को करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्यू, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं और एक पॉसिबिलिटी बनाता हूँ। क्या है, क्यू पी क्यू आर आर पी क्यू पी आर क्यू आर पी, ठीक है। अगर सपोज मैंने सबसे पहले इसमें से पी और पी को यहाँ से, यानी नहीं नहीं क्यू क्यू को लेते हैं, ठीक है। क्यू को लिया, फिर पी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू हुआ, फिर पी हुआ, फिर इस आर को लेते हैं और फिर इस आर को लेते हैं, यानी आर और आर। देखो सारे पॉसिबिलिटीज अलग है। अब इसके अलावा मेरे को और नहीं दिख रहे। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन देखो कॉमन क्या है, ये भी 4 लेंथ की है, ये भी 4 लेंथ की है, ये भी 4 लेंथ की है। ये भी कितना 4, ये भी कितना 4, ये भी कितना 4, ठीक है। तो ये देखो 4 तरीके के आप, सॉरी 3 तरीके के अपन को सीक्वेंस मिल रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि जब अपन इसमें अपना बॉटम अप अप्रोच जब अपन इसमें यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद मेरे को किस तरीके के सीक्वेंस मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले 4, ये 4 का है, पी और आर का है, दोनों अलग अलग है। मतलब एक तो वो यहाँ से आया होगा या तो यहाँ से। देखो इस बार पॉसिबिलिटी वो दोनों तरफ जाएंगे, मतलब मेरे को यहाँ से भी पूरे पॉसिबिलिटीज चेक करनी है और यहाँ से भी चेक करनी है। अब अगर मैं पहले ये वाला 4 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब ये 4 कहाँ से आया, आर और पी का आया। तो आर और पी मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब एक तो वो इधर से आया या तो इधर से, लेकिन देखो इधर 4 है, इधर 3 है। हाईएस्ट कौन सी है, ये वाली, यानी बड़ी वैल्यू ये, मतलब वो इधर से आया। चलो एक पॉसिबिलिटी कम। अब ये 4 किसका है, आर और आर का है, मतलब सेम है। सेम है मतलब कहाँ से, डायगोनली आया, मतलब इधर डायगोनल मिला, मतलब कंफर्म हो गया। यानी क्या कंफर्म हो गया, यहाँ पे मेरा आर, यहाँ पे लिख देता हूँ आर। आर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। आर एंडिंग में, आर किसका आ रहा है, ले सभी की इसमें एंडिंग में आर है, छोड़ो। देखते हैं। अब ये वाला आर, ये वाला 3 कहाँ से मिला, पी क्यू का है और क्यू का है, वापस से सेम, मतलब डायगोनली आया होगा ये, ठीक है। डायगोनल में 2 था, 2 + 1 3। अब डायगोनल में क्या, किसकी वैल्यू मिली डायगोनल में, ये क्यू की। क्यू में था ना, तो यहाँ से मेरा क्या फिक्स हुआ, क्यू फिक्स हुआ। अब ये 2 किसका है, पी और आर का है। तो देखो अलग अलग है, मतलब यहाँ से या फिर यहाँ से, ये छोटी है ये बड़ी है, तो मैं इधर मुड़ाऊंगा, ठीक है। अब ये वाला 2 कहाँ से मिला मेरे को, ये 2 मिला पी और पी से मिला, ठीक है। पी और पी से मिला मतलब डायगोनली आया, सेम आया मतलब डायगोनल आया। अब देखो, अब क्या आया, डायगोनल पी आया, सॉरी पी, पी कैसे लिखते हैं, हाँ ऐसा लिखते हैं पी, ठीक है। डायगोनल क्या आया, पी। मतलब देखो शायद मेरी ये वाली मेरे को सीक्वेंस मिलने वाली है। अब सबसे पहले देखो वही आ रहा ना, आर आ रहा, क्यू आ रहा, पी आ रहा। अब देखते क्यू आता है क्या। अब इस पे ये कहाँ से आया, आ गया क्यू। क्यू और क्यू आया सेम सेम, सेम आया मतलब कहाँ से आया, डायगोनल से आया। अगर डायगोनल से आया मतलब मेरे को क्या मिला, क्यू मिला। अब देखो यहाँ से 0 आया, मतलब 0 पे पहुंच गए, तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ से एक बॉटम डाउन, एक बॉटम अप अप्रोच यहाँ से सिलेक्ट हुआ। बट देखो ये वाली पॉसिबिलिटी स्टिल बाकी है। अब ये 4 कहाँ से आया, क्यू आर का है और आर का है, सेम सेम आया, मतलब ऑफकोर्स डायगोनली आया होगा यहाँ से। मतलब क्या आया मेरे पास, वापस से और एक पॉसिबिलिटी मिली आर की। अब ये 3 कहाँ से आया, क्यू का है और आर का है, अलग अलग है। मतलब एक तो यहाँ से आया या फिर यहाँ से, यहाँ पे गया तो अपने पास ये पॉसिबिलिटी ऑलरेडी सॉल्व है। अपन ये वाली को सॉल्व करते हैं। अगर मैंने 3, इसको 3 पकड़ा तो ये 3 किसका आया, आर का और आर का, वापस से सेम आया। मतलब कहा जा रहा है वो यहाँ पे डायगोनली, तो वापस से क्या आ रहा है, आर, ठीक है। अब ये वाला 2 किसका है, पी का है और क्यू का है, अलग अलग है। मतलब यहाँ से आया होगा या फिर यहाँ से, एक तो यहाँ से या तो यहाँ से। ये वाली पॉसिबिलिटी ऊपर वाली ऑलरेडी सॉल्व है, तो मैं बाजू वाली लेता हूँ। अब देखो 2 में, 2 कहाँ से आया, क्यू और क्यू, वापस से सेम आया, मतलब डायगोनली क्यू और क्यू, क्यू आया।
डायगोनली आया। अब देखते हैं अब ये 1 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, पी का है और पी का है, वापस से सेम सेम आया, मतलब कहाँ से आया होगा ये, ऐसा डायगोनल आया होगा। अब यहाँ पे 0 पे पी मिला ना, पी, अब यहाँ पे 0 पे पहुंच गए, टर्मिनेट हो चुका है। क्लियर हुआ, दिख रहा था क्या आपको अच्छे से क्यों ऐसा? ठीक है, अभी देख लो अच्छे से, 4 आया, फिर डायगोनली इधर में गया, दो पॉसिबिलिटीज थी, ऊपर वाला ऑलरेडी सॉल्व था, जैसे मैंने बाजू वाला कंसिडर करा, बाजू वाले में देखो मैंने वापस से कंसिडर करा, ये आर है, ये भी आर है, तो सेम है, इसलिए मैं डायगोनली गया। फिर ये देखो डिफरेंट था, क्यू था, पी था, तो दो पॉसिबिलिटी थी, ऊपर वाली ऑलरेडी कवर थी, तो नीचे वाले बगल वाली सॉल्व करी, लेफ्ट साइड की। अब लेफ्ट साइड में देखो ये क्या है, क्यू का है, ये भी क्यू का है, मतलब वापस डायगोनली आया होगा, तो मैंने यहाँ पे क्यू लिखा, डायगोनली यहाँ पे पहुंचे, ये भी पी की वैल्यू है, ये भी पी की वैल्यू है, तो वापस से डायगोनली 0 पे पहुंच गया, मतलब टर्मिनेट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, पी क्यू आर आर, कौन सी, देखो ये वाली मेरे को पहले ही मिल गई थी, पी क्यू आर आर, मतलब अब मेरे को ये भी मिली। लेकिन अब देखते हैं पास पॉसिबिलिटी कौन सी बाकी रह गई, अच्छा ये वाली देखो, ये वाला 3 बाकी है, 3 बाकी है, एक मिनट, ये 3 तो हो गया ना सॉल्व, ऊपर जा रहा है पॉसिबल, फिर ये वाली सीक्वेंस कैसे बनी, कैसी बनी देखना पड़ेगा कैसे, तो भी बनी होंगी मे बी, बनी, बन रही है क्या, देखो क्यू क्यू पी पी आर आर, हाँ बननी तो चाहिए ये वाली सीक्वेंस, एंडिंग में आर आर आ रहा है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी को ही देना है मेरे को, यहाँ से यहाँ पे आर आर यहाँ तक जाना है, आर आर आएगा ना, ठीक है, फिर यहाँ से वो चेंज हो रहा है, यहाँ से पी की वैल्यू आ रहा है, मतलब 2, शायद वो यहाँ से कहीं पे और जा रहा है, मे बी अपने को याद समझ नहीं रहा वो कैसे जाएंगे, लेकिन जाने दो। दो पॉसिबिलिटी निकाल ली अपन ने बॉटम अप अप्रोच से, वो भी इनफ है, दो नहीं निकालनी पड़ती, एक ही निकालनी पड़ती, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि एट द एंड अपन को एक ही लॉन्गेस्ट कॉमन निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब आपकी इच्छा, आप आंसर में ये लिखो या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो, तीनों में से कोई भी लिखो, बट यहाँ पे लेंथ मेंशन करना 0 4 है करके, आखिरी में से मेंशन करना कि 0 4 इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस पॉसिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर होल, अच्छे से लिखना है इसका फाइनल आंसर, 2 3 सेंटेंस लगा के इंग्लिश चौपड़ा के, बाकी सब होले होले चल जाएगा, ठीक है। अब सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ये पूरा थियोरटिकल पढ़ाया, एग्जैक्टली सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होता है, बाद में कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है, बाद में अपन ने यहाँ पे पढ़ा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है, वो अच्छे से पढ़ा मैंने, पूरा एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे पढ़ाया है आपको, तो पेपर में भी आपको एग्जाम्पल के साथ ही लिखना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे रिकर्सिव इक्वेशंस बताया है, उसके बाद मैंने एम एन को भी डिस्क्राइब करा, रिकर्सिव इक्वेशंस को भी मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि वो फॉर्मूले किस किस तरीके से अपन यूज करते हैं, तो आपको भी पेपर में वैसा ही पूरा एक्सप्लेन करना है, कंडीशन वाइज की कंडीशन 1 कहाँ यूज होती, 2 कहाँ होती, 3 कहाँ होती, ठीक है, और 3 में मैक्सिमम वाला कंसिडर करना पड़ता है, जो बेस्ट केस है इसको याद से आपको पेपर में लिख के आना है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो, ठीक है। बहुत कम चांसेस रहते हैं थ्योरेटिकल आने के, लेकिन आ गया तो पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे मैंने बॉटम अप अप्रोच को एक्सप्लेन करा, और यहाँ पे मैंने बॉटम अप अप्रोच को इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं आपके ऊपर है, आपको जिसको रो देनी है, जिसको कॉलम देना है कॉलम दो, रो दो, अल्टरनेट भी करा तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है, कोई गलत आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। बस आपको ये रहता है कि आपको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ती है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस की पॉसिबिलिटी कितनी होती है। मैंने थोड़ा सा अलग वाला एग्जाम्पल, ये बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करा अपन ने शॉर्टकट में, इतना शॉर्टकट मत लिखना पेपर में वरना मार्क्स गए आपके, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखना, डिटेल में थोड़ी थ्री थ्री लिख के, एक दो इसके फॉर्म आंसर्स फॉर्मूले लगा के भी निकाला तो वेल एंड गुड होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।